محکمہ شاہراہ کی ناقص منصوبہ بندی، پارا چنار میں نئی نویلی سڑک کو ادھیڑ کر رکھ دیا، اہل علاقہ کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ چکوال کی حسین وادی کلر کہار میں سالانہ زیتون میلہ سج گیا، میلے میں زیتون سے بنی اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث اوسطا محمد کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے، علاقہ مکین مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ چاکر خان کی رپورٹ۔ اوسطا محمد محکمہ پی ایچ ای اور ایریگیشن کی غفلت تمام حدیں پار کر گئیں۔ واٹر سپلائی اسکیم فیز 2 کے تالاب خالی ہو گئے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ واٹر سپلائی اسکیم فیز 2 پچھلے 2 ماہ سے تالابوں میں پانی نہ ہونے کے باعث بند پڑی ہے، جس کی وجہ سے فردوس کالونی، ریلوے کالونی، قربان کالونی، سول اسپتال روڈ، علی گور محلہ، حاجی یعقوب محلہ، بنگلزی محلہ سمیت کئی محلوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ پانی کی بحران کے باعث ان محلوں کی مدارس اور مساجد میں بھی پانی دستیاب نہیں، جس سے مدارس کے طلاب اور نمازیوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ پی ایچ ای کے اہلکار اپنے پرائیویٹ کاموں میں مصروف۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ماہ سے حسین آباد میلہ میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ میں اعلیٰ اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پانی کا مسئلہ جلدی حل کیا جائے۔ 3 ماہ سے پانی نہیں ہے، کپڑے دھونے کے لیے نہ پینے کے لیے، حکومت سے درخواست ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ تمام شہر میں پانی کی بڑی قلت ہے۔ ہمارا یہ ادارہ ہے، ہمارے ہاں 80 کے قریب طلبہ رہتے ہیں، ہمیں پانی کی بڑی قلت ہے۔ تاہم مستعمل کے عوامی حلقوں نے حکام بالا سے اس بارے میں نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم محمد علی بلوچ کے ساتھ چاکر خان دیناری، سچ نیوز اوسطا محمد۔ آرے کے روائی علاقے میں شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے، فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا کے چک نمبر 123 بی کا کافی مہینوں سے فلٹریشن پلانٹ خراب، لوگ صاف پانی پینے کو ترس گئے۔ چک کی عوام ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے لگی، کوئی پرسان حال نہیں۔ پچھلی دور حکومت میں بننے والا فلٹریشن پلانٹ کئی مہینوں سے خراب ہے، چک کا پانی کڑوا اور صاف نہیں ہے۔ لوگوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے 6 مہینے اس بعد خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، عمران خان کا دور ہے، صحیح نہیں کسی نے بھی کیتا، نہ کوئی توجہ دیتی۔ پانی سارا گندا ہے تو کوئی بھی نہ استعمال نہیں کرتا، جہاں استعمال کرتا بیمار ہو جاتا۔ بنا تو ہے لیکن اس کا پانی خراب ہے، سارے گاؤں کے لوگ گندا پانی پی رہے ہیں اور بچے بیمار ہو رہے ہیں، اس کی دوبارہ مرمتی کی جائے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کو ووٹ دے کر الٹا مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں، صاف پانی پینے کو ترس گئے ہیں۔ خدا را ہم پر رحم کرو اور فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کرواؤ۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ خان بیلا کی بستی نناری کا زیر زمین پانی کڑوا ہونے سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے، رپورٹ کر رہے ہیں اسلم ملک۔ خان بیلا بستی نناری کا زیر زمین پانی کڑوا ہونے سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ کڑوا پانی پینے کے قابل نہیں، جبکہ علاقہ مکین دور دراز کے علاقوں سے میٹھا پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں۔ یہاں کا جو پانی ہے بہت ہی کڑوا ہے، کڑوے پانی کے ہونے سے ہماری بستی میں جو لوگ ہیں بیماری کا شکار بن رہے ہیں۔ ہماری بستی کا پانی بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بستی میں صاف پانی واٹر سپلائی کا لایا جائے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے علاقام سے بستی نناری میں واٹر سپلائی کے پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم ملک، سچ نیوز، خان بیلا۔ چنی گوٹ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا، شہری کھارا پانی پینے پر مجبور ہو گئے، رپورٹ کریں گے صدیق خان۔ چنی گوٹ شہر کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کافی عرصے سے فلٹر چینج نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا ذائقہ کڑوا اور بدبودار ہو گیا، جس کی وجہ سے واٹر فلٹریشن بند کر دیا ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ واٹر فلٹریشن کے پلانٹ کے فلٹر کو چینج کر کے دوبارہ چلایا جائے تاکہ شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا ہو سکے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ یہ کافی عرصے سے بند ہے، تو حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس فلٹر کو چینج کیا جائے تاکہ شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا ہو سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان، سچ
न्यूज चंडीगढ़। अहमदपुर शर्किया में महकमे जंगलात की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। मलिक शकील की रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया में महकमा जंगलात की तरफ से वजीर आजम इमरान खान के विजन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। महकमा जंगलात के अफसरान नहरों से दरख्त कटवाने में मसरूफ है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर रखा है। मगर महकमा जंगलात के इंतजामिया दरख्त लगवाने की बजाय दरख्त कटवाने में मसरूफ है और जो दरख्त अंधारी के बहस गिरे हुए हैं उनको गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है। 50,000 वाला दरख्त 15,000 का चालान बनाकर व्यापारी को बेच देते हैं। बकिया पैसे लेकर अपनी जेब गरम कर लेते हैं। इलाका मकीनों ने आला अफसरान से मुतालबा किया जो अफसर दरख्त कटवाने में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील वारुन, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। टोबा टेक्सिंग में फेस्को का इदारा करप्शन का गढ़ बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद। हुकूमत की जानिब से शहरियों को सहूलत और शिकायत के अदाले के लिए बहुत सी डिजिटल एप्लीकेशन का सहारा लिया गया। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल और हुकूमत पंजाब की जानिब से शिकायत सेल बनाया गया। शहर में बैनर अवीजा किए गए मगर अमली तौर पर सब दावे झूठे साबित होने लगे। शहरी एक तरफ महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं तो दूसरी जानिब बिजली के मीटर के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। वापडा की जानिब से हुकूमती खजाने को महाना करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। शहर में एक ही घर पर 3-3 मीटर नस्ब कर के करोड़ों रुपए की करप्शन की जा रही है जिसमें वापडा मुलाजमीन मुलव्वस हैं। गैस के मीटर मौजूद हैं लेकिन बिजली का मीटर नहीं लग रहा। अगर साइल फाइल बनाकर लेके जाता है तो वहाँ पे कोई इंतजामिया के जो लोग बैठे होते हैं वो मुंह खोल के बैठे हैं कि ठीक है जी हमें पैसे दें तो आप चले जाएं फिर आपका काम हो जाएगा। मैं उन फाइल लैके गया उन्होंने ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ मेरी इल्तिजा है भी कोई मेरे गरीब आदमी तो कोई रहम किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महकमा वापडा दफ्तर में ईमानदार अमले को तैनात करके रिश्वत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। सवात के नवाई इलाके बरीकोट में बिजली के ज्यादा बिलों ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। बरीकोट के इलाका कोटा के अवाम वापडा के नारवा और ज्यादा बिलों के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। इलाका अवाम ने पेस्को ऑफिस सब डिवीजन बरीकोट के सामने बिल्स हाथ में उठाए शदीद नाराबाजी करते हुए एहतजाज किया। ये वापडा की गफलत है, हम इसको नहीं मानते। ये बिल हम अदा नहीं कर सकते, ये हमारी साथ जुल्म है। में बहुत जुल्म है और इसका काम में नहीं है। क्या कीजिए 3,04,000 रुपये किधर से आते हैं, किधर से जमा करते हैं। वापडा का गलत है, रीडिंग टाइम क्यों नहीं देते, नहीं आते। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अवाम पाकों पर मजबूर है जिसमें 3 से 4 लाख रुपए बिल अवाम के साथ सरासर जुल्म है। लोग एहतजाज के लिए मजबूर हो गया, ये लोग आया, इन लोगों का साथ जुल्म है। बिल आता है ज्यादा 3 लाख 4 लाख और जुल्म कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं हम इंसाफ कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। इंसाफ का नाम पे ना इंसाफी कर रहे हैं, ये जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है हम लोग का साथ। 8 लोग नहीं ले सकते तो बिजली का बिल कहाँ से पूरा करेगा। इतना पैसा लोगों के पास में, सब गरीब लोग हैं। मुजाहरे में अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महकमा वापडा सब डिवीजन बरीकोट के एहलकारों का किबला दुरुस्त करे ताकि गरीब अवाम के साथ ये जुल्म बंद हो सके। न्यूज टीम ने SDO सब डिवीजन बरीकोट का मौक़िफ़ लेने के लिए दफ्तर पहुंचे तो SDO ने 2 घंटे इंतजार करने के बावजूद बासर अफराद के साथ खुद को मसरूफ जाहिर करते हुए मौक़िफ़ देने से बाज रहे। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट सवात। कमालिया के नवा इलाके में सीवरेज के पानी ने लोगों का घरों से निकलना महाल कर दिया है। इस हवाले से देखिए असद राजपूत की रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस कमालिया शहर सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। कमालिया शहर से सेवरेज के गंदे पानी के अखराज के लिए नई पाइपलाइन बिछाने के लिए बगैर किसी हिकमत अमली के काम शुरू करने पर शहरी आबादी से कई फीट ऊंची सेवरेज लाइन की तनसीब के दौरान मल्ला नूर शाह समेत कमालिया के मुख्तलिफ इलाके सेवरेज के गंदे पानी में डूब गए। गलियों और बाजारों में खड़ा सेवरेज का गंदा पानी न सिर्फ राहगीरों के लिए वबाले जान बना हुआ है बल्कि कई वबाई अमराज के फैलाव का बायस बन रहा है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब, वजीर बल्दियात और कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेकर रिलीफ की अपील की है। पाराचनार में 30 साल के बाद करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क को तरक्याती कामों की आड़ में उधेड़ कर रख दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बंगश।
پارچنار سے شلوزان پاک افغان سرحدی دیہات پیواڑ بتری منگل کی طرف جانے والی واحد سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. عوام کو درپیش تکلیف و پرزور مطالبات پر گزشتہ سال سڑک پر حتی رقم سے کام شروع کر دیا گیا. ایک طرف اس طویل تعمیراتی کام سے بھی عوام شدید اذیت میں مبتلا رہے، جبکہ سڑک بنتی ہے اس میں ٹیلی کمیونیکیشن کیبل بچانے کے لیے ہیوی مشینری سے کھدائی کر کے سڑک کو پیر سے نکارا کر دیا ہے. یہ جو ہمارا روٹ ہے یہ پراچنار سے افغان ماڈا تک اس کی جو منظوری ہوئی ہے، اب اس کو بڑی مشکل سے 1 سال سے ہم جو گزر رہے ہیں اس پر بڑی مشکل سے، اب جو بنا ہوا 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا. اب جو کیبل والی کمپنی نے اس پر دوبارہ کام شروع کیا، بڑی ہیوی مشینری سے اس کو خراب کر دیا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے کی گئی کھدائی سے نئی سڑک کو شدید نقصان پہنچا ہے، جو آنے والے موسم سرما کی سختی بارشوں اور برفباری سے مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ہی کنٹرات میں تبدیل ہو جائے گی. پارچنار شلوزان روڈ کی تعمیر مکمل ہوتی ہی محکمہ ٹیلی فون کی جانب سے کھدائی اور توڑ پھوڑ سرکاری محکموں کی ناقص منصوبہ بندی کا منہ بولتا ثبوت ہے. جاوید بنگائے، سچ نیوز، پارچنار، ضلع کرم. گھوٹکی کے نوائی علاقے میں سیوریج کا نظام ناکارہ ہو گیا ہے. اس حوالے سے دیکھیے عبدالغفور کی رپورٹ. گھوٹکی کے قدیمی گاؤں بگڑا کوری میں ٹاؤن انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث گاؤں کی مین روڈ 9 ماہ سے سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے گاؤں کی دکانیں بند ہیں اور مکمل نظام درم برم ہے. گاؤں کے بچے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں اور نمازی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے قاصر ہیں، جبکہ خواتین اور بچے روڈ پر سیوریج کے گندے پانی جمع ہونے سے گاؤں کے افراد تنگ راستے سے گزرنے پر مجبور ہیں اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں مختار کار صاحب اباڑوں کو اور اے سی صاحب کو بھی مطالبہ کرتے ہیں، ڈی سی کمشنر صاحب کو مطالبہ کرتے ہیں، اعلیٰ حکام افسروں کو بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را یہ ہمارا جو گندا پانی کھڑا ہوا ہے اس سے ہماری نجات دلا دے. اعلیٰ حکام کو، ڈسٹرکٹ کونسل کو، صوبائی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس سندھ میں اس علاقے میں نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ حشر ہے، تو اس کے پاس اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم کس کے پاس جائیں. 5000 سے زائد آبادی پر مشتمل قدیمی گاؤں کے مکینوں نے ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کے نظام کو جلد سے جلد بہتر کیا جائے تاکہ وہ مزید مشکلات سے بچ سکیں. کیمرہ مین عبدالرؤف کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈہر کی. ٹھیکیداروں نے حکومت کو کروڑوں کا چونا لگا دیا. عباسپور میں پولیس اسٹیشن خستہ حالی کا شکار ہو گیا. رپورٹ کریں گے مبشر سید. آزاد کشمیر میں 2005 کے زلزلے کے بعد تمام عمارات گر کر تباہ ہو گئیں. وہیں عباسپور کی سرکاری عمارات بھی زلزلے کی نظر ہوئیں. کچھ عمارات کی تعمیر نو تو مکمل ہوئی مگر تاحال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. کہیں ٹھیکیدار کام چھوڑ کر بھاگ گئے تو کہیں کروڑوں کا چونا لگ گیا. 14 سال کے بعد عباسپور تھانے کی بلڈنگ مکمل تو ہوئی مگر 2 سال کے اندر بلڈنگ کے در و دیوار کانپنے لگے. تمام دیواروں سے پلستر اکھڑنے کے ساتھ ساتھ چھتیں بھی ساون کی بارش کا منظر پیش کر رہی ہیں. پولیس کا اسٹیبلان جاگ کر راتیں گزارتے اور چارپائیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر مجبور ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشر سید، عباسپور، آزاد کشمیر. ٹنڈو جام میں سورج آگ اگلنے لگا. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ آج شروع ہو گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں جنید علی بھٹی. ٹنڈو جام میں سورج کی آگ لگتے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. گرمی کا پارا ہائی ہونے کی وجہ سے شہری اور دکانداروں کا ہوا برا حال. اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا لائٹ ہے ہی نہیں. ٹنڈو جام والوں کو جو ہے اتنا پریشان کر دیا، لائٹ والوں نے اتنا پریشان کر دیا. کاروبار متاثر ہوئے پڑے ہیں. ہم سارے دن فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی گھر سے نکل ہی نہیں رہا. لائٹ بالکل نہیں. آدھا گھنٹہ ایک دیتے پھر یہ لائٹ لے لیتے. گرمی میں سارے پریشان ہوئے پڑے، بچے سارے تکلیف میں. مجھے بتاؤ کیا کرے گا، کتنے مریض بیٹھے ہوئے گھروں میں. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو کے یہ 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. شہر کے اندر گرمی سے شدید برا حال ہے. بچے گھروں میں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں تو دوسری جانب گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین شدید گرمی میں پریشان ہیں. اسکول میں ہمارے بچوں کی بھی گرمی کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو رہی ہے. ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہیسکو ٹنڈو جام کے خلاف سختی سے نوٹس لے کر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کروائی جائے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ مین محمد شری مٹھو کے ساتھ جنید بھٹی، سچ نیوز، ٹنڈو جام. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک.
हुकूमत संवारने के लिए लाखों रुपए माहाना फंड आने के बावजूद भी म्यूनिसिपल वालों ने देखभाल तक नहीं की है, जिसकी वजह से शहरी और बच्चों की तफरीह के लिए बनाए गए जानवरों के मत्स्य में हाथी, घोड़े, झूले, जेबरा और दीगर मिस्मार हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा, पब्लिक पार्क है मखदूम बिलावल के नाम से, ये इस सारे शहर का और सारे रकबे का एक ही पार्क है, पब्लिक पार्क मखदूम बिलावल, और इस पे इंटरनेशनल कंपनियों की तरफ से भी खर्चा किया गया। शहरी कहते हैं जब पब्लिक पार्क की जिम्मेदारी मल्टीनेशनल कंपनी संभालती थी तो पार्क के हालात बेहतर थे। म्यूनिसिपल कमेटी को हेडवार हुई तो म्यूनिसिपल वालों ने पार्क को उजाड़ के रख दिया है। ये हमारे जो ही सिटी का ये वाहद पार्क है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इसे बनवाया था, लेकिन ये जब मल्टीनेशनल कंपनी के तरफ था तो ये बहुत उरूज में, तो यहाँ से तेल निकालती है अरबों खरबों का, उन्होंने बनाया था और देखभाल भी वो करते थे, तो इस पार्क की कंडीशन बहुत अच्छी थी, ये साफ सुथरा होता था, इसकी हर चीज बनी बनाई यहाँ मिलती थी। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी के आला अमलदारों से नोटिस लेकर पार्क की सफाई सुथराई के लिए आने वाले लाखों रुपए माहाना बजट की तहकीकात करके पार्क के हालात बेहतर करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। जेहलम में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एलपीजी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। हालिया एलपीजी की कीमतों में बेपनाह इजाफे से जेहलम के शहरी भी परेशान है। शय खुर्द नोश आगे ही महंगी है और अब एलपीजी का झटका भी आवाम को चारों शानों चित कर चुका है। एलपीजी जो कीमतें हैं इसमें गवर्नमेंट ने जो इजाफी टैक्स लगाया हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एलपीजी के सिलेंडर महंगे हो गए हैं, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। गवर्नमेंट ने जो अभी रेट मुकर्रर किया है 2060 रुपये मुकर्रर किए है सिलेंडर का 11.8 kg का, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्स कम करे और गरीब आदमी की पहुंच में ये सिलेंडर आए। अगर आए रोज एलपीजी की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो लोग सिर्फ एलपीजी गैस के सिलेंडर को देख देख के अपना मन जलाया करेंगे। एलपीजी जो कि गरीब और मुतवसत तबका इस्तेमाल करता था, अब उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। लगता ये है कि हुकूमत तो तरक्की नहीं कर रही, लेकिन एलपीजी की कीमतें ऊंची उड़ान कर रही हैं और तरक्की कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान से गरीब और मुतवसत तबका ये अपील करता नजर आता है कि इस पे नजरसानी की जाए और एलपीजी को सस्ता किया जाए, जो कि गरीब और मुतवसत तबका इस्तेमाल करता है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, जेहलम। चकवाल की हसीन वादी कलर कहार में सालाना जैतून मेला सज गया। देखिए साकिब अब्बास की रिपोर्ट। एग्री टूरिज्म और एस गार्डन के जेर तमाम चकवाल की हसीन वादी कलर कहार के सैगल फार्म में सजा छठा सालाना जैतून मेला, जिसका इफ्तिताह मिसिज गवर्नर पंजाब परवीन सरवर ने किया। उनको मेले में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का विजिट भी कराया गया। जैतून से बनी अशिया के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, हमारे मुल्क में ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेहत के लिए अच्छा जो ऑलिव्स होती है, कुरान पाक में इनका जिक्र है। इस जैतून मेले में न सिर्फ जिला चकवाल बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहरों से भी अवाम के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा तलबात ने भी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े फार्मर बन चुके हैं जी। जितनी यहाँ पे फार्मिंग हो चुकी है, जितने दरख्त लगे हैं ऑलिव के, और अनदर 3 years 3 साल के टाइम में इंशाल्लाह हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी बन रहे हैं। जैतून मेले में अवाम की आगाही के लिए सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, जिसमें जैतून की अफादियत और जैतून की काश्त को फरोग देने के बारे में माहिरीन ने बताया। आखिर में मिसिज परवीन सरवर को शील्ड पेश की गई, जबकि इस मौके पर सिविल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, चकवाल। हाफिजाबाद के नवाई इलाका रसूलपुर तारीखी अहमियत का हामिल है। शहरियों ने अपनी मदद के तहत मेडिकल कैंप लगाया। देखिए जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद का नवा इलाका रसूलपुर तारीखी अहमियत का हमल है। यहाँ पर रोल हेल्थ सेंटर तो मौजूद है, लेकिन सरकार का अमला आज भी मदीना की रियासत बनाने में हायल है। इलाका के अमरा तो अपनी मदद के तहत अच्छे डॉक्टरों के पास बैरून अजला में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के गरीब आवाम जो आज भी महंगे दामों इलाज नहीं करवा सकते और डॉक्टर की भारी फीस अदा नहीं कर सकते। लेकिन इन गुरबा का दर्द दिल रखने वाले ऐसे में एक नौजवान अली नवाज तारड़ है, जिसने बीमार लोगों के लिए अपनी मदद के तहत डॉक्टर को मेडिकल कैंप में मदऊ किया। सरकारी अस्पताल जाने हैं, कभी डॉक्टर कोई नहीं, कभी दवाई कोई नहीं। प्राइवेट जो कि साढ़े को पैसे कोई नहीं, ठीक है। असि शुक्रगुजार हाँ चौधरी अली नवाज दे जिन्हें फ्री मेडिकल कैंप ला के गरीबां दी दादरसी की है। यूं तो हर शख्स ही अपने करीबी रिश्तेदारों का सहारा बन जाते हैं, लेकिन मदीना की रियासत तब मुकम्मल होती है जब इंसान हुकूकुल अबा का ख्याल रखकर मदीना वाले आका दो जहां खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। जिंदगी का मकसद औरों के काम
काम आना। सिनामा में मकामी MPA की जानिब से फ्री आई कैंप लगाया गया है। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। अड्डा वनार पर मकामी MPA नियाज खान गशखोरी के डेरे पर चौथा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में आने वाले मरीजों के आंखों का चेकअप किया जा रहा है। जिन मरीजों के सफेद मोतियां हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। 950 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। 500 से ज्यादा मरीजों को एनके तकसीम की गई। 2 दिन में 200 मरीजों के सफेद मोतियों के ऑपरेशन किए जाने हैं। चौथा सीजन हमारा चल रहा है। यहाँ पे हमने तकरीबन कल और आज मिला के 900 मरीजों को चेकअप किया है, जिसमें से 150 मरीजों के ऑपरेशन होंगे। MPA नियाज खान गशखोरी का कहना है कि अपने इलाके के करीब आवाम के लिए फ्री आई कैंप लगाया गया है ताकि लोग फायदा उठा सकें। 1000 से प्लस मरीज यहाँ मौजूद थे और उनका ऑपरेशन भी किया जा रहा है और पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मैं मेरे इलाके के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं समझता हूँ कि उनकी दहलीज पे उनके मामला और उनका मसला हल हो रहा है। ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीजों के लिए मुफ्त दवाई, एनके और खाने और पीने का और रिहाइश का फ्री इंतजाम किया गया है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए दीगर जिला की तरह खानेवाल इंतजामिया भी हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शिराजी ने अब्दुल हकीम की सब्जी मंडी में नीलामी का जायजा लिया। राहिल रियाज की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए दीगर इजला की तरह खानेवाल इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शिराजी ने अली सूबा कबीरवाला अब्दुल हकीम की सब्जी मंडी में नीलामी का जायजा लिया। सब्जी मंडी में नाकस सफाई पर मार्केट कमेटी हुकाम की बरहमी की और असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला से रिपोर्ट तलब की। डिप्टी कमिश्नर ने नजायज कमीशन माफिया के घेरात मजीद तंग करने का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर ने तलब और रसद के निजाम के बारे में भी मालूमात ली। कबीरवाला अब्दुल हकीम शहर की सफाई और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को भी चेक किया। दौरे के दौरान उनका कहना था कि मंडियों से मार्केट तक इशा के नर की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। अब्दुल हकीम शहर की खूबसूरती और सफाई के लिए खुसूसी प्लान तश्कील दे दिया गया। इनका बल्दिया के मुलाजमीन से कहना था कि वाटर प्लांट्स के फिल्टर बर वक्त बदले जाएं ताकि आवाम को साफ पानी की सहूलत मुयस्सर रहे। कबीरवाला अब्दुल हकीम के विजिट के दौरान AC कबीरवाला खुर्रम हमीद और चीफ ऑफिसर मोहम्मद हुसैन बंगश भी उनके हमरा थे। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज, कबीरवाला। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। पंजाब में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। दो 212 वार्ड्स के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 62 नशस्तों पर कामयाब, नून लीग के 59 आजाद उम्मीदवार, 55 नशस्तों पर फातेह, पीपल्स पार्टी 17, MQM 10 और जमात इस्लामी 7 सीटें हासिल कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2-2 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के 51 उम्मीदवार कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार रहे जिन्होंने 32 नशस्तें हासिल की। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ 28 वार्ड में कामयाबी हासिल कर सकी। 2 आजाद उम्मीदवार भी अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब हुए। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवार कामयाब हुए। MQM के 10, 7 आजाद उम्मीदवार, जमात इस्लामी के 5 और मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 18 उम्मीदवार कामयाब हुए। 11 आजाद उम्मीदवारों ने फतह हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 5 वार्ड में कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के 3 जबकि ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के 3, आजाद उम्मीदवार 4, BAP के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। खैरपुर की ताजर बरादरी की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। अली गौहर की रिपोर्ट। खैरपुर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ SSP खैरपुर जफर इकबाल मलक ने नोटिस लेते हुए DSP सिटी को अहकाम जारी की, जिसने कार्रवाई करके कुछ रोज कबल सचल अंजमान ताजरान से लूटने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके उनसे लूटी हुई रकम 3 लाख रुपए नकद बरामद करके खैरपुर के ताजरान के हवाले की, जिस पर सचल अंजमान ताजरान की जानिब से SSP खैरपुर की टीम का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अजरक, टोपी और फूलों के तोहफे पेश किए। इस सूरत हाल से ये मेरे साथ में जो आज ताजरान खड़े हैं, अगर हमारे अमन अमान की सूरत बेहतर नहीं होती तो मेरा ख्याल है ये हमारे पास मौजूद नहीं होते। जो रिकवरीज हुई हैं हम अपने SSP खैरपुर के जो उनका काम है उसको अप्रिशिएट करते हैं और साथ साथ जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे साथ सचल अंजुमन ताजरान और भी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे यहाँ आए, आपने देखा मीडिया के नुमाइंदे आए और पुलिस पर्सनल थे, उसमें लाइन फोर्समेंट एजेंसी के लोग थे। बहरहाल ये बहुत अच्छी काविश है। ताजरों के साथ दरपेश मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे, अवाम के साथ मिलकर जुर्म का खात्मा करेंगे। SSP ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर पुलिस टीमों को तारीफ
फी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात से भी नवाजा। कैमरा टीम के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज खैरपुर। हबीबाबाद में कमसिन बच्चे ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया, डाकू को गोली मारकर जख्मी कर दिया। हबीबाबाद में डाकू शॉपिंग सेंटर पर डकैती की नीयत से दाखिल हुए बच्चे ने डाकू को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जबकि डाकू जख्मी हालत में फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीपीओ कसूर की हिदायत पर नाकाबंदी करके डाकुओं को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी गई है। कोरोना मजीद 67 जिंदगियों का चराग गुल कर गया। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 2988 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 26,787 हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,07,508 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53,158 टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 4,14,390 हो गई। सिंध में 4,45,369 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,68,748 अफराद मुतासिर हो चुके। बलोचिस्तान में 32,591 जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 10,168 मरीज सामने आ चुके। इस्लामाबाद में 1,02,863 जबकि आजाद कश्मीर में 33,789 केस रिपोर्ट हो चुके। पंजाब में कोरोना से मरने वालों की तादाद 12,225, सिंध में 7,159, खैबर पख्तूनख्वा में 5,270 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में 889 जबकि बलोचिस्तान में 342 अफराद शिकार हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 181 और आजाद कश्मीर में 721 मरीज जान से हाथ धो बैठे। लाल सुहारा नेशनल पार्क दुनिया भर में मशहूर, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और खूब लुत्फानंदोज होते हैं। राशिद लतीफ की रिपोर्ट। लाल सुहारा नेशनल पार्क जो कि दुनिया भर में मशहूर है, को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। पार्क में मौजूद झूले और परिंदे लोगों की तफरीह का जरिया बनते हैं। शहरियों का कहना था कि दूर से आए हैं लाल सुहारा पार्क में, बहुत अच्छा पार्क है, बच्चों को सैर कराने के लिए यहाँ लाए हैं। बच्चे अच्छे इंतजाम है सफाई का, फूलों का, और बच्चे बहुत खुश हुए हैं। दूर दराज से आए सयाह खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। हाफिजाबाद में जिले इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के जेरे इंतजाम बैडमिंटन मुकाबले अख्तिताम पजीर हो गए। इस हवाले से देखिए मेहर अबूबकर यूनुस की रिपोर्ट। हाफिजाबाद में भी हुकूमत पंजाब की हदायत पर खेलों के फरोग के सिलसिला में जिले इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट के जेर एहतमाम मुनक्किदा बैडमिंटन मुकाबले अख्तिताम पजीर हो गए। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान फाइनल मुकाबलों के मेहमान ख़ुसूसी थे। PTI के रहनुमा चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी और CEO एजुकेशन जावेद इकबाल बाबर समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मुकाबले देखे। डिप्टी कमिश्नर और दीगर मेहमान ख़ुसूसी ने फाइनल मुकाबलों के विनर और रनर अप खिलाड़ियों में ऑफिशियल में इनाम तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए जिला भर में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और दीगर खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म के विजन के तहत स्कूलों की सतह पर भी क्रिकेट के मुकाबले और दीगर खेलों को फरोग दिया जा रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान जो कि कुदरती हुस्न से मालामाल है, इसकी वादी शव्वाल को पाकिस्तान में जन्नत का टुकड़ा तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आदम खान कुंडी। वादी शवाल जो जनूबी वज़ीरिस्तान का हुस्न है, खूबसूरती के लिहाज से दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। टूरिस्ट यहाँ पर खुशी मनाते हैं और नाचते गाते हैं। अगर इस इलाके को तवज्जो दी जाए, लोग इधर उधर जो जाते हैं तो उसके बजाय ये यहाँ पर आए, क्योंकि पाक फौज की वजह से यहाँ पर अभी बिल्कुल ही अमन है। पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों से यहाँ पे अमन बहाल हो चुका है। अभी भी काफी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हम भी आए हैं। मौसम भी काफी ठंडा है। माहौल को साफ रखने के लिए टूरिस्ट अब बच्चों का खाना और गंद खुद उठाते हैं, जो अच्छी बात है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, सच न्यूज टांग। खानबेला में दरियाई इलाकों की लकड़ी लई से बनी टोकरियों का रिवाज आज भी आम है। असलम मलिक की रिपोर्ट। टोकरियां कई चीजों की मदद से तैयार की जाती हैं, पर दरियाई इलाकों की लकड़ लई से बनाई जाने वाली टोकरियां अपनी मिसाल आप हैं। टोकरियों को बनाने के लिए मर्द व खवातीन कारीगर लई की लकड़ को निहायत महारत से मोड़कर खूबसूरत शक्ल में टोकरियां तैयार करते हैं। टोकरियां तैयार करने वाले कारीगर ने बताया कि ये टोकरियां मजबूत और लचकदार होने की वजह से घरेलू एशिया रखने के साथ सब्जी मंडी तक सामान ले जाने में भी काम आती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज, खानबेला। लाहौर के शाह बुर्ज में वाक़े मुगलिया दौर का शाहकार शीश महल आज भी देखने से ताल्लुक रखता है। सफेद संगमरमर से बनी इमारत के रास्तों को पतीरी दौरा, जबकि तमाम अंदरून इमारत को शीशे से इंतहाई नफासत से सजाया गया है। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।
इस्लाह की इब्तिदा खुद से कीजिए, खुशियां मनाएं लेकिन सफाई का ख्याल रखें। This public service message is presented by Sach TV. आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पस मंजर से पेश मंजर तक, लम्हा ब लम्हा